So we are actually reading from Srimad Bhagavatam, first canto, 9th chapter, and verse number 23. Bhaktyavesh mano yasmin vachayannama kirtayan tajan kalevaram yogi muchyate kama karma bhi. The personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion and meditation, and by chanting the holy name releases the devotee from the bondage of fruity activities at the time of his quitting the material body. So what's happening is, what's happening is Bhishma Pitama is on his last few days of his, actually it's not last few days, actually um, on the bed of arrows, and he's waiting to die. And then everybody comes in, उनको मिलने के लिए आते हैं सारे पांडव, and Bhishma Pitama is talking to them. He was very happy to see Krishna भी आए हैं, है ना? And now he's saying the personality of Godhead who appears in the mind of the devotee by attentive devotion, it can free a devotee from bondage of fruity activities at the time of, and because Krishna was present, he was so happy. Now let's read the purport and say what Srila Prabhupada is saying. Who wants to read the purport? I can read. Okay, Yes. you read it. Ruchita, Mother, do you want to read? No, it's good. You read. Yoga means concentration of mind detached from all other subject matter. And actually, such concentration is samadhi, or 100% engagement in the service of the Lord. And one who concentrates his attention in that manner is called a yogi. Such a yogi devotee of a Lord engage himself 24 hours daily in the service of Lord, so that his whole attention is engrossed with the thoughts of Lord in ninefold devotional service, namely hearing, chanting, remembering, worshipping, praying, becoming a voluntary servant, carrying out order, establishing a friendly relationship, or offering all that one may possess in the service of the Lord. By such practice of yoga or linking up in the service of Lord, one is recognized by the Lord Himself, as it is explained in the Bhagavad Gita concerning the highest perfectional stage of samadhi. The Lord calls such a rare devotee the best amongst all the yogis. Such a perfect yogi is enabled by the divine grace of Lord to concentrate his mind upon the Lord with perfect sense of consciousness, and thus by chanting his holy name before quitting the body, the yogi body, quitting the body, the yogi is at once transferred by the internal energy of Lord to one of the eternal planets where there is no question of material life and its concomitant factors. In material existence, a living being has to endure the material conditions of threefold miseries, life after life, according to his fruitive work. Such material life is produced by material desires only. Devotional service to the Lord does not kill the natural desire of living being, but they are applied in the right cause of devotional service. This qualifies the desire to be transferred to the spiritual sky. General Bhishma Deva is referring to particular type of yoga called Bhakti Yoga, and he was fortunate enough to have the Lord directly in his presence before he quitted his material body. He therefore desired that the Lord stay before his view in the following verses. Hare Krishna Prabhu. Hare Krishna. What a beautiful purport. So, as we spoke, Bhishma Pitama is very, very happy. What is he talking about? He's talking about method to go back to Godhead. Now, first thing first. First of all, why do we need to go back to Godhead? Why do we want to go back to Godhead? कोई बता सकता है why do we want to go back? Because that's our. Okay, Richa Mataji, you say. Should I say? Yes, say it, Mataji. Because that is our real position. We belong to Krishna, and this is where we can experience eternal love. That's correct. That is correct. Now, we want to go back. Now, why can't we? Is it a possibility that we can actually experience that same thing here in material world?
आई थिंक इट्स पॉसिबल, बट मैंने भी एक्सपीरियंस नहीं किया तो आई डोंट नो। पता नहीं। How about you, Richa Mataji, Neha Mataji? Can What, we Prabhu? I can just missed a can question. we experience? हम लोग को वहां क्यों जाना है? Because we want to experience the bliss, and we don't belong here. We want belong in material spiritual world. So we want to go back home, back to Godhead, because we want to feel that kind of a bliss. Can आई we थिंक feel that प्रभु bliss हमें here? हमें थोड़ा उसका लाइक यू बोलते ना, नॉट 100% ब्लिस फील होता होगा, बट लाइक वी कैन गेट, आभास. हाँ थोड़ा आभास होता होगा उस चीज का, बट कंप्लीट ब्लिस नहीं होता होगा। Okay. All right. Yes, Prabhu, when we are engaged in the devotional service of the Lord, or we are serving the devotees, then we can feel that bliss in Okay. some percentage. Okay. Fair enough. Actually, then so यहाँ पर जो बात हो रही है, पहले तो हम लोगों को why do we want to go back, है ना? We want to go back because we don't belong here. Fish out of the water, fish wants to be in water. उसको आप कितने भी दाल पकवान खिला दो, कुछ भी खिला दो, doesn't really matter. A fish wants to get back into water, है ना? तो इसी तरीके से we want to go back home, back to God. Now पहली चीज तो ये है कि हम लोगों को कैसे पता चला there is a place. हम लोगों ने स्क्रिप्चर्स में पढ़ा, हमें डिवोटिस ने बताया, तब हमें पता चला कि ये एक ऐसी जगह है जहां से हम लोग आए हैं, है ना? नाउ वी वांट टू गो बैक टू होम, बैक टू गॉड हेड. नाउ प्रॉब्लम ये है कि कैसे जाएं, है ना? कैसे जाएं? सो देयर आर सम टेक्निक्स टू गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड. कोई बता सकता है व्हाट आर द टेक्निक्स टू गो बैक होम, बैक टू गॉड Prabhu, by रिमेम्बरिंग chanting. कृष्णा, हेड? चैंटिंग एंड रिमेम्बरिंग हिम इन वॉट एवर एक्टिविटीज यू डू। यस, वट एवर यत करोशी यत जुहोशी यत जुहोशी यत करोशी यत अशनाशी, वो ठीक है, लेकिन हाउ? सो अगर हम हर चीज में उनको याद करेंगे, वी विल गो बैक होम, बैक टू गॉड हेड. प्रभु, Yes, Prabhu. एज पर Firstly, हाँ. एज पर चैतन्य महाप्रभु, या. नाम रुचि, वैष्णव यस. सेवा एंड जीव दया। Yes, Nam Ruchi Vaishnav Seva Jiva Daya. That's a beautiful answer. Any other way? How else we can go back home, back to Godhead? प्रभु, इसमें सभी कवर हो गए। Exactly right. Exactly right. Actually, uh, there was an amazing lecture by His Grace. Um, क्या नाम है उनका? नाम ही भूल गया मैं. चैतन्य चरण प्रभु, है ना? चैतन्य चरण प्रभु का एक लेक्चर था, उसमें ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी वेज वी कैन गो बैक होम. मतलब हम लोगों को कैसे, कितने तरीके हैं जाने के. पहला तरीका है, हम लोगों ने वो वर्स पढ़ा होगा, भगवद गीता के एक वर्स है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये याति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय, है ना? एक तो ये वर्स है. तो ये वर्स मैं 1 मिनट आपको खोल के दिखाता हूँ, ठीक है? अंत काले च मामे मेरी स्क्रीन दिख रही है आपको? yes, Prabhu. ओके. अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम ये प्रयाति समद्भावम याति नास्ति अत्र संशय. देर इज नो संशय, नास्ति अत्र संशय, इसमें कोई संशय नहीं है. किसमें? अंत काले, जो मामेव स्मरण, जो मेरा स्मरण करता है अंत काल में, स्मरण मुक्त्वा कलेवरम, कलेवरम का मतलब होता है बॉडी, है ना? वो बॉडी छोड़ते वक्त जो मुझे याद करता है ना? तो वो मेरे पास आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है. कौन बोल रहा है ये? भगवान कृष्ण बोल रहा है, ठीक है? तो एक तरीका क्या होगा? रिमेम्बरिंग लॉर्ड एट द टाइम ऑफ डेथ, ठीक है? नाउ अंते नारायण स्मृति जिसको कहते हैं, ठीक है? अंते नारायण स्मृति, आखिरी में भगवान की स्मृति आना. तो ऐसा एक काम और कर सकते हैं भाई, कि क्या करें? क्या कर सकते हैं हम लोग कि एंड में बोल देंगे. अभी अभी क्यों बोलने की जरूरत है? नाम अंतकाल में याद कर लेंगे भगवान को. तो ऐसा क्यों नहीं कर सकते हम लोग? अंतकाल में याद कर लेंगे पूरा. भक्ति, इतना भक्ति करने की क्या जरूरत है? प्रभु बिकॉज एंड में तभी आप याद कर पाओगे जब आपकी प्रैक्टिस रहेगी, दैट्स करेक्ट. हाँ. रिमेम्बरेंस भी तभी होगा। हाँ, अगर आप ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने जा रहे हो, यू कांट जस्ट यू कांट जस्ट रॉक अप टू बोले हाँ बस मेरे को एक ही रेस में तो फर्स्ट आना है ना?
तो मिल जाएगा गोल्ड मेडल? नहीं, उसके लिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि अंत काल में आप हम लोगों को पता, अच्छा ठीक है, हम लोग अंत, अगर हम लोग प्रैक्टिस, सपोज हमें पता है, ये क्लियरली पता है, सपोज आज से हम लोग चैंटिंग करना बंद कर देंगे, तो क्यों हम लोगों को इसलिए बोला जाता है कि एंड में क्या पता हम लोग वो कोई हमें याद दिलाते कुछ कर दे? तो एंड में जब मरते वक्त, व्हाट इज द थिंग दैट स्टॉप्स अस फ्रॉम इवन थिंकिंग अबाउट गॉड? अगर हम लोग प्रैक्टिस ना करें, क्या चीज है, कोई सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जो हमें भगवान को याद नहीं करने देती है एट द प्रभु, टाइम? प्रभु हमारे बॉडी लेवल पे पेन बहुत हो रहा होता है। यस, वेरी नाइस, वेरी नाइस। कितना पेन हो रहा होता है? 40,000 स्कॉर्पियन बाइट्स के बराबर, पता नहीं प्रभु याद। 48,000 स्कॉर्पियंस बाइटिंग टुगेदर। और ये मैं अपनी क्लास में भी एक बार बता रहा था अभी थोड़े टाइम पहले, कि 40,000 स्कॉर्पियंस आपको काट रहे हैं, ठीक है? नाउ 40,000 स्कॉर्पियन, जब एक स्कॉर्पियन आपको काटता है ना, तो कई बार क्या होता है, कई लोग ना, स्कॉर्पियन का पॉइजन होता है ना, वो एक्चुअली डेडली, इतना डेडली नहीं होता है, आपको सिक कर सकता है लेकिन डेडली नहीं होता है। लेकिन जो पेन होता है ना, उससे कई लोग पेन से मर जाते हैं, इतना पेनफुल होता है सिर्फ एक बिच्छू का काटना, ठीक है? यहाँ पर 40,000 बिच्छू एक साथ काट रहे हैं। तो आपको सोचो कि आपका कहाँ कॉन्शियसनेस जाएगा, सिर्फ पेन को ही मैनेज करने में चला जाएगा, पेन को ही समझने में चला जाएगा, है ना? तो इसके और साथ साथ प्रभु इम्प्रेशंस भी मैटर करते हैं ना, कि हमने क्लियर, होल राइट, लाइफ कैसे किया, क्योंकि एग्जैक्ट, समटाइम प्रभु जिसके जैसे इम्प्रेशन रहते हैं उसके दिमाग में वही थॉट वही पिक्चर बन जाती है। दैट्स करेक्ट। अभी जैसे बिल्कुल सही बोला नेमा जी ने, क्योंकि क्या होता है कि जैसे ही 40,000 बिच्छुओं ने काटा, वो एक्चुअली वो दर्द होता क्यों है, वो भी आप हम लोग देख लेते हैं आज। वाई डू वी गेट दैट काइंड ऑफ अ पेन? ठीक है, क्यों आता है हमें? सपोज, मैंने क्लास में भी करा था ये, मैंने कहा सपोज ये छोटी वाली उंगली है, उल्टे हाथ की छोटी उंगली, ठीक है? उल्टे हाथ की छोटी उंगली को मैं बोलूंगा कि आप मेरे को ये उंगली दे दो, आई विल कट दिस उंगली विद फिंगर विद द नाइफ, है ना? बट आई विल गिव यू, यू नो 100,000, $200,000। कोई भी नहीं कटवाएगा एक छोटी सी फिंगर। क्यों? क्योंकि एक छोटी सी फिंगर, उल्टे हाथ की सबसे छोटी फिंगर जो वीक होती है, टाइपिंग में भी ज्यादा यूज नहीं आती है। इसको इसको देने से अगर दो 200,000, 1 करोड़ रुपए मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है? लेकिन कोई देता नहीं है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि टू पार्ट विद a फिंगर, मी एंड माई आवाज आ जाए, दिस इज माई फिंगर, हाउ कैन आई पार्ट विद दिस फिंगर? आप सोचो, जो उंगली हमारी सबसे वीक है, हाथ वीकेस्ट, हाथ की सबसे वीकेस्ट उंगली, अगर हम लोग नहीं दे सकते हैं किसी को, हमारे अंदर इतना प्रेम है अपने अपने शरीर से, वो शरीर एक झटके में आपसे निकल छीन लिया जाता है। और वो जो झटका लगता है ना, दैट कॉजेज पेन। तो और इसीलिए नेहा माती जी ने जो बोला इम्प्रेशन, वो जो इम्प्रेशन होते हैं, अगर आप पूरी जिंदगी अहम ममेती, मैं और मेरा, इसमें रह रहे हो, अहम ममेती, अगर मैं और मेरे में आप रह रहे हो पूरी जिंदगी, तो क्या होगा अंत काल में? ठीक है, जब मृत्यु का समय आता है, मृत्यु का समय जब चल रहा है, मृत्यु का समय आ गया है, अंत काल में क्या होगा, आपके दिमाग में क्या चलेगा? क्योंकि आपने पूरे दिन, पूरी जिंदगी सिर्फ पैसा 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 करा है, आपने पूरी जिंदगी पैसा कमाया है, अंत काल में आपको दिमाग में क्या आएगा? यार ये पैसा कहाँ जाएगा, किस बेटे को दूं, किसको ना दूं, कोई ये चोरी कर लेगा, अरे इसका पासवर्ड, ये बैंक अकाउंट में मेरे इतने पैसे, मैंने बीवी को तो बताया ही नहीं, वो पैसा किसी को मिलेगा नहीं, बेकार हो गया पैसा, ये वो। आप इस, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, सारी जिंदगी आपसे निकल छीनी जा रही है। अंत काल में आपका पूरे जो अ, जिंदगी है आपसे छीन ली जाती है, कुछ भी वापस नहीं मिलेगा आपको, कुछ भी नहीं मिलेगा, आपके नाखून भी आपके साथ नहीं जाने वाला है ना? प्रॉपर्टी तो छोड़ो। तो ये जो गम होता है, ये जो दुख होता है कि उस समय मरते वक्त, इट इज ह्यूज। और अगर आपने पूरी जिंदगी, मेरा परिवार, मेरा परिवार, मैं और मेरी मैं और मेरा बंगला, मैं और मेरी नौकरी, मैं और मेरी कार, ये पूरी जिंदगी सोचा है, तो एंड एंड में आपके दिमाग में सिर्फ ये आएगा, अरे यार इन सब चीजों का क्या होगा? इतना सारा मैंने इकट्ठा करा है यार, इतना बड़ा घर बना है, इतने बड़े बड़े घर हैं मेरे पास, इतना सारा बिजनेस इकट्ठा करा है, क्या होगा इसका? कुछ भी मेरे साथ नहीं जा रहा है। तो वो जो रियलाइजेशन होता है ना, वो रियलाइजेशन आपको भगवान की तरफ मुड़ने ही नहीं देगा। हमें पता है, हमें पता है, अंत काले च मामेवा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। अभी हमने देखा, मरते वक्त जो भी भगवान को याद करता है, गारंटीड भगवान उनको लेके जाते हैं अपने साथ, अंत काल च मामेवा, है ना? नाउ
ये बात पता है, फिर भी हम लोगों से क्यों हो जाता है ऐसा? अब ये शिला प्रभुपाद इसमें क्या बोलते हैं, ये वाला जो वर्स है वो अपन लोग क्विकली देखते हैं। इस वाले वर्स में शिला प्रभुपाद बोलते हैं कि Krishna consciousness is stressed. Anyone who quits his body is in Krishna consciousness at once transferred to the transcendental nature of Supreme Lord. है ना? The Supreme Lord is the purest of the pure. Therefore, anyone who is constantly Krishna conscious is also purest of the pure. है ना? और स्मरण means remembering. Remembrance of Krishna is not possible for the impure soul, and that is the reason why we need to do bhakti. The whole पूरे जिंदगी हमें भक्ति इसलिए करनी पड़ती है क्योंकि अगर हम लोग भक्ति नहीं करेंगे, प्योरिफिकेशन नहीं होगा, वी विल स्टिल बी इम्प्योर, और भगवान की स्मृति नहीं आएगी, अंतः नारायण स्मृति नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि हमारी प्योरिफिकेशन ही नहीं हुई है ना? और भक्ति क्या प्रोसेस है? भक्ति इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन। ठीक है। अब शिला प्रभुपाद इसका वो भी बताते हैं उपाय क्या है। इफ वन वांट्स टू अचीव सक्सेस एट द एंड ऑफ लाइफ, द प्रोसेस ऑफ रिमेम्बरिंग कृष्णा इज एसेंशियल। सो क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए? वन शुड कॉन्स्टेंटली एंड इंसेसेंटली चैंट महामंत्र हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इंसेंसेंटली, कॉन्स्टेंटली एंड इंसेसेंटली। इंसेसेंटली का मतलब होता है कि विदाउट एनी स्टॉपिंग, बिना रुके, है ना? और लॉर्ड चैतन्य ने क्या बोला? अगर आपको पूरे समय हमेशा कॉन्स्टेंटली चैंट करना है तो आप नहीं कर सकते। कौन कर सकता है कॉन्स्टेंटली कॉन्स्टेंटली चैंट? जिसको एक चीज पता है। वो क्या पता है उसको? त्रिनादपि सुनिचेन तरोरेव सहिष्णुना अमानेन मानदेन कीर्तन या सदा हरि। भगवान बोलते हैं वो बंदा कर सकता है जो टॉलरेंट हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम क्या है हमारे साथ? हम लोग तो टॉलरेंट ही नहीं है। हस्बैंड को वाइफ की बात टॉलरेट नहीं होती है, वाइफ को हस्बैंड की बात टॉलरेट नहीं होती है, सास को बहू की बात टॉलरेट नहीं होती है, बहू को सास की बात टॉलरेट नहीं होती है ना? भाई को भाई की बात टॉलरेट नहीं होती है, हम लोगों को बॉस की बात टॉलरेट नहीं होती है, बॉस को हमारी बात टॉलरेट नहीं होती है ना? अब वो जो टॉलरेट है ही नहीं। अब आप सोचो टॉलरेंस है नहीं। ठीक है, किसी ने थोड़ा सा, कोई सुई लेके सामने खड़ा हो गया, हमारी हवा निकल जाती है। उसने टच भी नहीं करी है सुई, सुई हाथ में लेके खड़ा है कोई, और हमारी हवा निकल जाती है। सो दिस इज हाउ वी दैट्स माय स्टोरी। बट माता जी। एक्चुअली प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं होती है, बस वही हाँ सुई वाली कहानी है, दिख रही होती तो लगता है अरे देखो प्रॉब्लम है। हाँ, बस मैं कह रहा हूँ ना, ये दैट्स आपकी नहीं है माता एवरीवन्स जी, स्टोरी सबकी रुचिता। सबकी प्रॉब्लम है। अब सबकी प्रॉब्लम माता जी, दिस इज एवरीबडी, इवन मेरी भी प्रॉब्लम है। इट इज नॉट द फियर that it is not the actual act that kills us. This actually हमारे दिमाग में जो जजमेंट्स आते हैं ना, प्री कंसीव्ड आइडियाज, कि यार उसके हाथ में सुई है, जरूरी है मेरी हवा निकालने आ रहा है, तो हवा पहले से निकल जाती है। सो ये जो टॉलरेंस नहीं है ना हमारे अंदर, दिस इज द रीजन व्हाई वी कैन नॉट चैंट कॉन्स्टेंटली। ठीक है। तो पहला तरीका क्या था हमने देखा? पहला तरीका क्या है? रिमेम्बरिंग कृष्णा एट द टाइम ऑफ डेथ, अंत काले चमामे वा स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। ठीक है, एक तो हमें पता चल गया कि दिस इज। हाँ ऋचा माता जी, क्वेश्चन। प्रभु उसमें ये भी तो लिखा हुआ है ना, भगवान मतलब प्रभुपाद ने पurport में कि वही विदाउट प्योरिटी वी कैन नॉट गो, है ना? नहीं जब नहीं। हमारे, तो प्रभु अगर हम, ये क्वेश्चन शायद मैंने आपसे पहले भी पूछा कि मतलब अगर हम भगवान का नाम ले रहे हैं तो कई बार हम प्योर नहीं हो पाते, जैसे टॉलरेंट भी नहीं हो पाते, मे बी हाँ बाय द एंड इन द एंड ऑफ द लाइफ ऑल्सो उस टाइम पे भी नहीं हो पाएंगे, मतलब सबका नहीं कह रही मैं, अपना कह रही हूँ। तो प्रभु फिर हम क्या डोंट करें? से दैट में माता कैसे जी, जा लेट्स सकते नॉट हैं? लूज होप। देन मैं हाउ आपको कैन वी गो बता, बैक टू ये गॉड? ये माता जी, आपने ये मेरा जो लास्ट ट्रम्प का कार्ड है ना, इक्का, वो वाली बात बोल रहे हो आप मुझे, वो मैं लास्ट में आपको बताऊंगा, इस क्लास के एंड में बताऊंगा ये, क्योंकि यही ओके यही प्रभु, इसका वो है। सस्पेंस। क्योंकि देर इज एंड आई एम टेलिंग यू, बाय द टाइम वी फिनिश दिस क्लास, आई प्रॉमिस यू कि यू विल हैव कॉन्फिडेंस कि आई थॉट यू वर सेइंग all of us will मैं go back home, back to Godhead. There is a way, and there is a way which is in our reach. ये मैं बता दूंगा, guaranteed. Yes माता जी, क्या बोल रहे हो? मैं बोल रही हूँ, मुझे लगा आप बोलने वाले हो कि विल डेफिनेटली गो बैक टू गॉड हेड आफ्टर दिस क्लास। नहीं नहीं, आफ्टर दिस क्लास वी वुड नो दैट देयर इज ए वे एंड वी कैन ऑल अचीव इट। ये जो कॉन्फिडेंस होता है ना, कॉन्फिडेंस जो कभी कभार कम हो जाता है, वो निकल जाएगा, वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा वापस। ठीक है ना? पहला तो हो गया। दूसरा तरीका क्या होता है भगवत धाम जाने का? होता है समाधि के थ्रू। समाधि जो वर्ड इसमें शिला प्रभुपाद ने यूज करा है, लेकिन वो समाधि किसके लिए यूज कर रहा है? वो भक्ति योग की समाधि। अब समाधि का मतलब क्या होता है? सम अधि, समाधि का मतलब होता है
कि जब हम इस बंधन से हम लोग ऐसे, हम पूरी तरीके से कृष्णा में घुल गए हैं, उसको कहते हैं समाधि। हमारा पूरा वर्चस्व है, हमारा पूरा एग्जिस्टेंस है वो कृष्णा में मिल गया है, उसको कहते हैं समाधि। है ना। समाधि का मतलब ये नहीं है कि आप यू नो साष्टा उसमें पद्मासन में बैठे हो और आपने अपनी सिर्फ वो ना अपनी सांस ऊपर चढ़ा रखी है और नाक के आगे देख रहे हो, ना वो वाला वो वाले समाधि की बात नहीं कर रहा मैं। वो खैर उससे भी होता है, उससे भी हो सकता है ये वाला इम्पैक्ट, क्योंकि क्या होता है उसमें भी वी आर रियलाइज ट्राइंग टू रियलाइज परमात्मा। लेकिन वो समाधि क्या है, समाधि का मतलब क्या होता है, किसी भी जगह कभी भी आपने देखा होगा, कई बार हम लोग कीर्तन हो रहा है, कीर्तन हो रहा है और हम एक सेकंड के लिए, कुछ सेकंड के लिए खत्म हो गए, हम लोगों को अपना एग्जिस्टेंस पता ही नहीं चल रहा है, पूरी तरीके से सिर्फ उसमें कीर्तन में घुस गए। वो जो समय होता है ना, दैट मोमेंट इज ऑल्सो अ लिटिल बिट ऑफ समाधि, दैट इज अ टेस्ट ऑफ समाधि। व्हाट डज दैट मीन, हमारा पूरा का पूरा एग्जिस्टेंस भगवान में है। जैसे कई बार हम लोग कोई सेवा कर रहे होते हैं, बड़ी घुस के कर रहे होते हैं सेवा, एकदम से हम लोग भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, हम लोग भूल जाते हैं कि ये मैं बॉय हूँ या गर्ल हूँ, हम लोग भूल जाते हैं कि मैं फादर हूँ या ब्रदर हूँ, सब भूल जाते हैं, सारे रिश्ते भूल जाते हैं, सिर्फ उस सेकंड उस मोमेंट में हम होते हैं। और इसको कहते हैं समाधि। और जो हमारे जो गुरु महाराज वगैरह हैं, ये आर दे आर एक्चुअली आर इन समाधि ऑल द टाइम, इन द सेंस दैट एवरी सिंगल मोमेंट उनका क्या है, दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट कृष्णा। दे उन क्या कहते हैं, माइंड, बॉडी एंड वर्ड्स, ये तीनों चीजों को वो सिर्फ भगवान के लिए यूज करते हैं। माइंड माइंड में भगवान के अलावा कुछ नहीं सोचेंगे। सपोज मैंने गुरु महाराज को फोन करा, मैंने कहा गुरु महाराज आई एम इन अ वेरी बैड स्टेट, प्लीज हेल्प मी। Guru Maharaj is giving me suggestion, solution, whatever it is. लेकिन why is he giving me suggestion? Because he is giving me suggestion in a Krishna conscious perspective. वो मुझसे अगर मुझसे पूछ रहे हैं तुम्हारी जॉब कैसे चल रही है, तो he is not doing ग्राम्य कथा. He is asking me because his purpose is to help me go back home, back to Godhead. So when he is conversing me with me, उनका गोल क्या है, सिर्फ ये बता करने का कि मैं क्या करूं कि मैं इसकी हेल्प कर सकूं, आए थोड़ा और ग्रो करने में भक्ति। और उसके लिए अगर उन्होंने मुझसे पूछा मेरे जॉब कैसी चल रही है, मैं कहाँ जॉब कर रहा हूँ, कैसा कर रहा हूँ, और घर में कौन कौन है, ये जब हम उनको बताते हैं, ही इज नॉट टॉकिंग ग्राम्य कथा, ही इज नॉट डूइंग गॉसिप, ही इज ट्राई, वो क्या कर रहे हैं, वो हमारे जीवन में इंटरेस्ट ले रहे हैं ताकि वो हमारी हेल्प कर सकें भगवत धाम। तो उनका माइंड पूरी तरीके से भगवत भक्ति कर रहा है। बॉडी मतलब वो पैदल चल रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, कहीं पर भी जा रहे हैं, ट्रैवल करते रहते हैं, सिर्फ किस लिए, भगवान के प्रचार के लिए। और वर्ड्स, उनके मुंह से कभी भी कोई ऐसा नहीं चीज नहीं निकलेगी जो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कृष्णा से रिलेटेड नहीं है ना। रुचिता माता जी, क्वेश्चन। हाँ प्रभु, मतलब गुरु महाराज की पोजीशन ऐसी है, वो कॉन्स्टेंट समाधि में है। तो मतलब क्या हम जैसे नॉर्मल इंसान भी ऐसे जिंदगी जी सकते हैं कॉन्स्टेंट समाधि में? ऐसा वो होता मैं है कभी? एक्चुअली हम एक्चुअली ऐसा हो सकता है जब हम लेकिन उसके लिए प्योरिटी चाहिए होती है ना। अब वो हम्म। प्योरिटी कैसे आएगी, वो जो पहला वाला क्वेश्चन था जो ऋचा माता जी ने पूछा, वो उसका आंसर हम लोग देंगे थोड़ी सी देर, है ना। हम्म। तो ठीक है, इट मतलब इज मेरा पॉसिबल। एक और एक इट इज क्वेश्चन है पॉसिबल। उसके साथ हाँ साथ। पूछिए पूछिए, हाँ मतलब उसके लिए कि आपको जैसे ये तो प्रीच कर रहे हैं, द प्रीचर्स। हाँ। तो नो अगर नो, हम एज लाइक अगर हम इतना इस प्रोसेस में एज इन प्रीचिंग नहीं भी हैं, कोई फर्क जिस नहीं पड़ता है। साधना में है, तब भी आप ऐसे हो बिल्कुल सकते बिल्कुल हो बिल्कुल। साधना में? एक्चुअली आपको अच्छा ठीक है, जैसे प्रीचिंग इज ए सेवा, ठीक है ना। हाँ प्रीचिंग हाँ इज ए सेवा, आपको पता है चैंटिंग इज ऑल्सो ए सेवा, हाँ। ठीक है। एंड दो सेवा में कभी कोई अंतर नहीं होता है। और क्या सेवा है पता है, प्रसादम लेना भी सेवा है। हम्म जैसे मैं, आप मुझसे बात करके अगर मैं आपसे पूछ रहा हूँ माता जी आपकी साधना कैसी चल रही है, ये भी सेवा है। अगर हम्म आप मुझसे पूछ रहे हो, ये क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे हो, ये भी एक सेवा है ना। तो एक्चुअली सेवा में कोई अंतर नहीं होता, सेवा हम लोगों को प्योरिफिकेशन के लिए दी हुई है, और कौन हम्म क्या कर रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एज लॉन्ग एज हमारा इंटेंशन एकदम क्लियर है और हम अपनी कैपेसिटी के हिसाब से जितना हम कर सकते हैं उतना करने की कोशिश कर रहे हैं। तो फिर भगवान को क्या है, भगवान भावग्रही हैं, उनको पता है ठीक है यार, कई बार सर्कमस्टेंसेस नहीं होते हैं। जैसे कई, एक बार क्या हुआ, एग्जाम्पल देता हूँ आपको ना रुचिता माता जी। एक हम्म। बार क्या हुआ कि शिला प्रभुपाद की एक डिसाइपल थी, अ, ये शिला प्रभुपाद की थी या जयप्रताप स्वामी, आई कांट रिमेंबर, एक्चुअली शिला प्रभुपाद की डिसाइपल थी। उन्होंने, कांट रिमेंबर एक्चुअली, डोंट कोट मी ऑन दैट, कोई शायद ओके। शिला प्रभुपाद जो भी थे उनकी डिसाइपल थी वो उन्होंने बोला अपने अब शिला प्रभुपाद को कि शिला प्रभुपाद मेरे जो हस्बैंड है ना, वो मीट खाते हैं।
और मैंने ना उनको मना कर दिया, मैं नहीं बनाऊंगी क्योंकि अब मैं कृष्णा कॉन्शियस। उन्होंने बोला नहीं, तुम बनाओ, है ना, तुम बनाओ, मीट बनाओ। तो मीट बनाने वो तो उन्होंने बोला, उनको समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे बोल रहे हैं। फिर उन्होंने क्या करा, उन्होंने श्रील प्रभुपाद की बात मानी और उन्होंने अपने पति की सेवा करी, और इतनी सेवा करी, इतनी सेवा करी जिसमें ना वो बेरली, पहले तो 64 राउंड्स करती थी, बेरली 16 राउंड कर पाती थी उसके बाद, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता, बहुत सेवा करनी पड़ी। फिर इन लॉज की भी सेवा करी, बहुत सारी सेवा करी। एंड में क्या हुआ कि शिला प्रभुपाद ने उनको बोला कि मैं तुम्हारी ये जो सेवा है इससे बहुत प्रसन्न हूँ। उन्होंने करीब 5 साल के बाद वो प्रभु जी जो थे, जो उनके हस्बैंड थे, वो भी कृष्णा कॉन्शियस में आ हमने कृष्णा कॉन्शियसनेस में आ गए, और अभी इस वक्त मुंबई में बहुत जबरदस्त प्रीचिंग कर रहे हो, मतलब बहुत ही फेमस प्रीचर है। हम्म। और ये रियल स्टोरी है। तो क्या हुआ इसमें, इस पूरे में, वो जो माता जी थी, शी वॉज इवन व्हेन शी वॉज कुकिंग प्रसादम, प्रसादम तो नहीं, जो मीट बना रही थी उस वक्त भी शी वॉज थिंकिंग दैट शी इज डूइंग सेवा, बिकॉज व्हाट इज शी इज डूइंग, शी इज एक्चुअली फॉलोइंग द वर्ड्स और इंस्ट्रक्शंस ऑफ अ गुरु महाराज, दैट सेवा, है ना। और उनका इंटेंशन प्योर था, और उनकी प्योरिटी के कारण, बिकॉज शी वॉज कुकिंग फॉर हिम एंड शी वॉज कुकिंग अदर स्टफ एज वेल, जिसका प्रसाद लगा के उस सेम थाली में सर्व कर दिया करती थी वो, प्रभाव ये रहा कि द हस्बैंड बिकेम इवन मोर एडवांस्ड देन हर, है ना। तो कहने का मतलब है, इट्स नॉट व्हाट यू डू, इट्स व्हाई यू डूइंग इट, आपका क्या इंटेंशन है उसका, और आपका जो भाव है वो कितना स्ट्रांग है। शी वॉज सो डेस्परेट to, like, for Krishna, that, and she understood that Srila Prabhupada is representative of Krishna, so she accepted his words as the verbatim of Krishna, and she was willing to do any step, and that is called samadhi. It's not exactly what she was not doing everything शास्त्रिकली, इन अदर सेंस, मीट बना रही है वो, क्योंकि कहते हैं 50%, मतलब उसका भी पाप लगता ही है, इवन इफ यू आर नॉट ईटिंग, व्हेन यू सर्विंग समवन यू गेट कर्मा। तो कहने का मतलब यह है, समाधि का मतलब यह है, यू कैन बी इन समाधि इवन इफ यू आर डूइंग एनी काइंड ऑफ सेवा, द आइडिया इज टू, आप कितना डूब गए हो उस सेवा में। So Prabhu, the मैंने, ultimate cause is your desire for it. आपका दैट्स desire राइट, deep कितना है? डिजायर होना चाहिए, लेकिन हाँ, डिजायर डीप होना चाहिए, और डिजायर के ऊपर एक और चीज होती है, इंटेंशन तो खैर है ही, लेकिन अगर आपका इंटेंशन ही ये है, मतलब लोगों का इंटेंशन है लेकिन वो कोई कुछ कर नहीं रहा है, देन Action नहीं है। लाइक, हाँ। तब कुछ नहीं। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर फॉर एग्जाम्पल किसी को बोला मेरे को रोज टेम्पल जाने की इच्छा है, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, आप ना तो प्लान बना रहे हो कैसे जाना है, ना ही आपने कुछ वो करा है, तो क्या होगा, वो ठीक है, इंटेंशन हम्म। बहुत अच्छा है, रोज टेम्पल जाना चाहिए, मंगला अटेंड करनी चाहिए, लेकिन हम्म। आप क्या कर रहे हो उसके लिए। सो योर एक्शन शुड बी, योर एफर्ट शुड बी हंड्रेड Align परसेंट देयर, हाँ। with your desires. And then you can actually feel that bliss, and then you can be actually in samadhi. You don't have to be a preacher, you don't have to be a guru maharaj and stuff like that. There are so many pure devotees in the congregation, who are not initiating spiritual masters, but they are still हम्म। very pure, or they are actually in a very good state of mind, and we, और वो लोग, उन लोगों का माइंडसेट ऐसा है, जैसा मैंने उस दिन बताया था, नारायण परा सर्वे, कोई प्रॉब्लम ही नहीं उनको, वो हमेशा कहीं पे नारायण भी। है, कहीं भी रख हम्म। दो उनको, दे आर ऑल सेम, है ना। हम्म। सो एक तो समाधि का मतलब ये हो गया। तो पहला पहला तरीका क्या था भगवान के पास जाने का, रिमेम्बरिंग लॉर्ड एट द टाइम ऑफ दैट अंत काले च मामेवा, ठीक है। नाउ, अब नेक्स्ट एक और चीज मैं आपको शेयर करके दिखाता हूँ। ये कृष्णा बुक में से है, ठीक है। ये जो कृष्णा है ना, अदर बुक्स, कृष्णा द रिजर्व कृष्णा बुक है ना, उसका उसका पार्ट है। इसमें बताते हैं शिला प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि अ, अर्जुन कृष्णा को बता रहे हैं कि Krishna is the supreme, I am consciousness and part and parts of supreme consciousness. So my duty is to act according to the supreme consciousness. For example, I consider my hand as a part of my body. Now it is moving in its own way. As I want, let my hand be moved, let my legs be moved, let my eyes be seen. So I am dictating these parts are working. Similarly, we are all part and parcel of supreme when we train ourselves. This is the essence. When we train ourselves to move and act in accordance with the supreme consciousness, then we became transcendental to all these pious or impious activities. And this is the technique. What will be the result of this technique? We become free from the bondage of birth and death.
नो मोर बर्थ एंड नो मोर डेथ। तो क्या करना है, हमारी जो एक्शंस हैं सारे के सारे, वी हैव टू पुट इट टूवर्ड्स कृष्णा। ठीक है। नाउ एक तो हमने 8.5 देख लिया, एक देख लिया, एक 6.47। 6.47 इसलिए है क्योंकि यहाँ पर शिला प्रभुपाद बता रहे हैं, देखो भगवत गीता में इट्स एक्सप्लेन्ड दैट in Bhagavad Gita concerning the highest perfectional stage of samadhi, it is कह रहे हैं कि hearing, chanting, remembering, worshipping, praying, becoming voluntary servant, carrying out order, establishing a friendly relationship, or offering all that one possesses in the service of Lord. By such way, your practice of yoga or linking up in the service of Lord, one is recognized by the Lord Himself, and he will get samadhi. And the Lord calls such a rare devotee. Now 6.47 में क्या बता रहे हैं शिला प्रभुपाद, ये आप लोग ऋचा माता जी, यू विल स्टडी दिस इन भक्ति शास्त्री। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, की मेमोरी वर्स था। योगी नाम अपि सर्वेषां मद्गतेनंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्ततमो मतः। भगवान क्या कह रहे हैं, योगी नाम अपि सर्वेषां, जितने भी योगी हैं सारे के सारे को मिला लो, है ना, ऑल द योगीज वन विद फेथ मद्गतेन अंतरात्मना, है ना, वो मेरे अंदर रहता है। कौन कौन रहता है, श्रद्धावान भजते यो माम, जो जो म- बिल्कुल श्रद्धा के साथ मेरे को भजता है। और सा में युक्त तमो मता, वो क्या कहता है, ही इज द मोस्ट इंटीमेटली युक्त तमो मता, मेरे साथ युक्त हो, मतलब मेरे साथ वो हो रहा है, क्या बोलते हैं, ही इज कंसिडर्ड टू बी ग्रेटेस्ट योगी क्योंकि ही इज यूनाइटिंग विद मी इन योगा। ठीक है। अभी क्या है, द रीजन यहाँ पर क्या बोला गया है, एंड ऑल्सो वन विद ग्रेट फेथ हु ऑलवेज अबाइड्स इन मी, थिंक्स ऑफ मी within himself and renders transcendental loving service to me, he is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all। कौन बोल रहा है, whose opinion is this? This is the opinion of supreme personality of Godhead ना। सो पहला तरीका क्या हो गया, रिमेम्बरिंग कृष्णा। दूसरा तरीका हो गया समाधि, है ना। एंड तीसरा तरीका है टू बिकम ए प्योर डिवोटी। जो हम लोग भी पूछ रहे थे, आप लोग पूछ रहे थे ना, हाउ डू वी बिकम ए प्योर डिवोटी, है ना। अब ये तरीका तो है, यू बिकम ए प्योर डिवोटी, भगवान कहते हैं जैसे ही आप प्योर डिवोटी बने, you cannot you can actually go back home, back to God then and there, no problem, whenever you want you can go back. You need to be pure. Now the problem is how many anarthas we have so many anarthas, so many anarthas, so many anarthas। हमारे इतने अनर्थ हैं कि चैतन्य महाप्रभु के शिष्टाष्टकम में जो सेकंड वर्स है, वो कौन, सेकंड वर्स क्या है, नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणे न कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैव्यमिदृशम् इह जानी नानुरागः। भगवान कह रहे, चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नाम अकारी बहुधा, आपके जो नाम है भगवान श्री कृष्ण, आपके जो नाम है इतने सारे हैं, इतने सारे हैं, अकारी बहुधा, बहुत सारे नाम हैं। और क्या है उन नामों में, निज सर्व निज सर्व शक्ति, आपकी पूरी जो पोटेंसी है, पूरी जो एनर्जी है आपकी, आपने उसमें डाल रखी है, खुद की पूरी एनर्जी आपने उसमें डाल रखी है। हर नाम में भगवान के मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ नाम है, उन नाम में भगवान ने निज शक्ति डाल रखी है, खुद की शक्ति डाल रखी है। तभी तो हम कहते हैं नाम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। ठीक है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वा शक्ति तत्रापिता नियमिता स्मरणे ना काला। और उसमें भी क्या करा, चलो आपने हमें नाम इतने सारे दे दिए, हम एक भूल गए तो दूसरा याद है, फिर वो नाम याद करा दी, फिर नाम में अपनी सारी शक्ति डाल दी। ठीक है। फिर उसके बाद क्या करा, कोई नियम और कानून भी नहीं लगाया, न स्मरणे ना काला, मतलब देर इज नो नियम नो कानून, आप टॉयलेट की सीट पे बैठे हो, यू कैन स्टिल चैंट द होली नेम ऑफ द लॉर्ड। ठीक, कोई नियम नहीं है। ठीक है। नाम नाम अकारी बहुजा निज सर्वशक्ति तत्रापिता नियमिता न स्मरणे ना काला, ना तो टाइम ना प्लेस ना सर्कमस्टेंस, कुछ भी किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। आप शुचि हो, मुची हो, गंदे हो, मीट खा रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप चैंटिंग कर रहे हो, यू कैन डू इट, कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है। तो भगवान ने क्या दिया है, नाम नाम अकारी बोझो निज सर्वशक्ति तत्रापिता निमिता स्मरणे न काला एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, आपने इतनी कृपा दी है हमें, है ना। एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि, हम सब लोगों को, मेरे को और सब लोगों को आपने इतनी कृपा दी है। तो,
तत्रापि तनिमित स्मरण काले एतादृशी तव कृपा भगवान ममापि दुर्दैव्यम इदृशम इहे जानी नानुराग है। बट मैं इतना ज्यादा बेवकूफ हूँ, मेरा माइंड इतना ज्यादा बेवकूफ है दैट आई डोंट हैव एनी लव फॉर द नेम ऑफ गॉड। आपने सब कुछ दे दिया मुझे बट आई हैव नो अट्रैक्शन फॉर दैम। इतनी बुरी हालत है मेरी। कौन बोल रहा है? चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं। और वो इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि चैंटिंग में पूरी एनर्जी है, क्योंकि भगवान की पूरी शक्ति है उसमें यार। भगवान ही सुप्रीम पर्सनालिटी, उनकी पूरी शक्ति, 100% ऑफ हिज शक्ति इज इन हिज नाम। तो हम लोग जब नाम लेते हैं, हमें कृष्ण बोलते ही वो हो जाना चाहिए, प्यूरिफाई हो जाना चाहिए। क्यों नहीं होता है? बिकॉज वी हैव सो मच ऑफ अनर्थ, दुर्दैव्यम ना। हम लोग इतनी बुरी कंडीशनिंग है हमारी, उस कंडीशनिंग के कारण हमें असर नहीं पड़ रहा है ना। नाउ बिकमिंग ए प्योर डिवोटी इज अ वेरी वेरी हार्ड थिंग, है ना। बिकमिंग ए, लेकिन बिकमिंग ए प्योर डिवोटी इज अ वे टू गो बैक। कैसे करेंगे? हम आते हैं उस पर। फिर चौथा है, अगर हमें टेस्ट आ जाए चैंटिंग का, ठीक है, अगर हमें बहुत चैंटिंग में मजा आने लग जाए किसी तरीके से, तो क्या होगा कि विल फॉल इनटू इट्स प्लेस। क्योंकि हमारे साथ प्रॉब्लम क्या है, हमें जो मजा आता है हम उसको छोड़ते ही नहीं, करते ही जाते हैं, करते ही जाते हैं, है ना। नेटफ्लिक्स में कुछ चल रहा है, एक सीरीज देखी, एक देखी, दूसरी देखी, देखे जा रहे हैं, क्योंकि हमें हमें कंट्रोल ही नहीं है ना। और इंस्टाग्राम में रील देखे जा रहे, देखे जा रहे, देखे जा रहे हैं, फेसबुक पे देखे जा रहे, देखे जा रहे हैं 30। और 5-5 सेकंड का शॉर्ट्स आते हैं यूट्यूब में। क्या प्रॉब्लम है? 5 सेकंड में क्या जाता है? लेकिन 5 सेकंड टाइम्स 1 मिलियन कर दो, है ना, हो गया खत्म काम, है ना, गए आपके एक हफ्ता। ना हम लोगों की आदत क्या खराब है, जिस चीज में हमें मजा आने लग जाता है हम उसको छोड़ते ही नहीं है। तो अगर हमें चैंटिंग में मजा आने लग जाए तो क्या होगा? हम उसको नहीं छोड़ेंगे। फ्रेंड से बात कर रहे हैं, अंदर मंत्र चल रहा है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, अंदर चल रहा है, मस्त है ना। अब सोचो कितना मजा आ जाएगा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो टेस्ट इन चैंटिंग से हमारा पार निकल सकते हैं। लेकिन ये सारी की सारी चीजें नॉट पॉसिबल। शिला प्रभुपाद ने हमें क्या बोला? कोई बता सकता है? व्हाट इज द प्रॉमिस ऑफ शिला प्रभुपाद टू ऑल ऑफ अस? Take us back. बट हाउ? व्हाट डू वी हैव टू डू? So वो We chant should 16 chant, down and chant follow 16. four regulative principles. यस, इफ यू चैंट 16 राउंड एंड follow four regulative principle, I will take you back. Hmm. Now ये कहाँ से आ रहा है? दिस इज कमिंग फ्रॉम मर्सी कोटा। हम लोग क्या, हमारी इतनी ना तो औकात है, मतलब मैं अपनी स्पेशली बता रहा हूँ, कोई औकात नहीं है कि वी कैन गो बैक टू गॉड। आपका जो क्वेश्चन था ना ऋचा माता जी, कि हमारी कैसी कंडीशनिंग है ऐसी यार, इतने टाइम हो गया पता ही नहीं चल रहा, वैसे के वैसे हर बार लगता है कि स्टैटिक ही हो गया, अब तो कुछ इंप्रूवमेंट भी नहीं हो रहा है। लेकिन बस एक बात ध्यान रखना, शिला प्रभुपाद का वचन है, शिला प्रभुपाद का कमिटमेंट है, शिला प्रभुपाद की जबान है इसमें। एंड एक बार भक्त प्रॉमिस कर देता है ना, तो भगवान भी पीछे नहीं हटते। भगवान प्रभु अ, प्रभु एक बार शायद मैंने क्लास में किसी लेक्चर में ये सुना था जिसमें प्रभुपाद जब ये बात कर रहे थे, मतलब इसके कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने कंटिन्यू करा था, या मतलब बात कर रहे थे वो डिसाइपल से कि आप लोग 100% प्योरिटी अचीव कर लोगे तब मैं लेके जाऊंगा, ऐसे उन्होंने नहीं नहीं, कुछ उन्होंने लेक्चर में क्या कहा बोला था? था। अटेंटिव उन्होंने चैंटिंग। फिर कहा था 70% पे उन्होंने सबको, सबके चेहरे लटक गए थे कि हम तो 70% 100%। नहीं, 70%, उन्होंने 50% तक भी पहुंच गए थे वो, फिर सबके चेहरे फिर भी लटके रह गए थे। लेकिन उन्होंने क्या बोला फिर उसके अलावा? उन्होंने बोल रखा है कि इफ यू गिव योर 100%, है ना, टू ट्राई एंड डू अटेंटिव चैंटिंग, आई विल टेक यू बैक। नो, आई एम नॉट इवन टॉकिंग अबाउट दिस, आई एम गोइंग वन। वो भी क्या बोल रहे हैं आगे, वो भी सुनो। नमो महावदन्याय कृष्णा प्रेम पदायते। वदन्याय कौन है? ये चैतन्य महाप्रभु। नमो महावदन्याय, इतने ज्यादा मर्सीफुल हैं वो। कृष्णा प्रेम पदायते, कृष्णा प्रेम देते हैं। कौन? कृष्णाय कृष्णा चैतन्य नामने गौरा तुषे नमा। कौन देता है? चैतन्य महाप्रभु। हमारा जो मर्सी कोटा है ना, इट्स कमिंग फ्रॉम चैतन्य महाप्रभु, है ना। और ये जो प्योरिटी है, ये शिला प्रभुपाद हमें लेके जाएंगे, ये इस बात की गारंटी ये है कि हमारे पास जो मर्सी कोटा है वो कैसा है? 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स एंड 100% इंटेंशन और 100% एफर्ट टू डू अटेंटिव चैंटिंग, एंड देर इज नो वन दैट कैन स्टॉप अस। अभी देखो मैं आपको बताता हूँ कृष्णा कैसे हैं। आपको पता है, देर इज ए वर्स इन भगवत गीता, कौन ते ही प्रति जाने नाम
कौन थे, प्रति जाने ही नामे भक्त्या प्रणश्यति, उन्होंने अर्जुन को बोला कि प्लीज जाके बोलो, अनाउंस करो कि मैं अपने भक्तों को कभी भी छोड़ूंगा नहीं, ना मैं भक्त्या, उनको कभी गिरने नहीं दूंगा, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, कभी नहीं अबेंडन करूंगा, आई विल नेवर अबेंडन माय डिवोटीज, जाके अनाउंस करो। अब विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, आई थिंक विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, वो लिखते हैं, व्हाई डिड ही से दैट, व्हाई कुडंट कृष्णा से, कृष्णा ने बोला ही है, उसमें भी बोला है ना, भगवत गीता में बोला ही है, यू नो, आई विल टेक यू, डू नॉट फियर, बोला ही है, आई विल टेक यू बैक। तो ये अर्जुन से क्यों बुलवा रहे हैं? उसका उन्होंने रीजन दिया कि यार, कई लोग बोलते हैं ना यार, भगवान कृष्ण तो ऐसे ही है यार, वो बोलते कुछ है, करते कुछ है, होता कुछ है ना। उन्होंने बोला कि मैं हथियार नहीं उठाऊंगा, उठा लिया उन्होंने हथियार, कोई भरोसा नहीं है भगवान की बात का, है ना। लेकिन ने भगवान में एक चीज है, अपनी बात भले ही वो, अपना प्रॉमिस भले ही वो तोड़ दें, लेकिन अपने भक्त का प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ेंगे। एंड दैट इज द मर्सी कोटा वी आर टॉकिंग अबाउट, दैट इज द मर्सी कोटा दैट इज कमिंग थ्रू चैतन्य महाप्रभु एंड कमिंग थ्रू शिला प्रभुपाद। शिला प्रभुपाद हैज टोल्ड अस, यू डू योर बेस्ट, you become, you try and do your attentive chanting every single day, and you follow the four regulative principles, I will take you back home, back to Godhead. And that is our mercy quota. And I'm telling you, this is like a discount that you can never get. और ये सिर्फ once in a millennium, once in a day of Brahma it happens, जहां पर चैतन्य महाप्रभु उसी समय आए हुए हैं जहां पर कृष्ण खुद ही आए हैं, 5000 ईयर बाद चैतन्य महाप्रभु खुद आए। सो दिस इज अ मर्सी कोटा हम लोगों को मिला है। वी हैव टू मेक श्योर दैट वी आर following the four regulative principles and chanting the 16 rounds attentively every single day minimum, and 100% have faith that Srila Prabhupada will take me back. Yes, Richa Mataji. हाँ प्रभु, इसमें भी एक यही क्लॉज है ना प्रभु, क्या? अटेंटिव चैंटिंग, अटेंटिव तो होती नहीं है। नहीं तो, नहीं, एक्चुअली क्या है, शिला प्रभुपाद एक जगह और बोलते हैं, शिला प्रभुपाद एक जगह और बताते हैं कि हमें लगता होगा कि कृष्णा विल बी प्लीज्ड बाय अस चैंटिंग अटेंटिवली, है ना। एक्चुअली व्हाई वुड कृष्णा बी प्लीज्ड, क्योंकि कृष्णा को पता है ये अटेंटिव चैंटिंग करेगा तो प्योरिफिकेशन जल्दी होगा, ठीक है। अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमारा एम क्या है, टू प्लीज कृष्णा, अल्टीमेट एम इज टू प्लीज कृष्णा, और कोई एम नहीं है ना। प्लीज कृष्णा, आई मीन गुरु महाराज, कृष्णा, जो भी मतलब हमारे आचार्य, वी हैव टू प्लीज देम। नाउ देयर इज ए verse in there which talks about how is Krishna pleased. Krishna is भावग्रही। अगर हम पूरे भाव से, आपको पता है वो कुब्जा थी ना, कुब्जा, डू यू गाइस नो हु वाज कुब्जा इन, यस प्रभु। हाँ, previous life who was कुब्जा इन previous life? शूर्पणखा, हाँ यस। शूर्पणखा, ठीक है। शी वाज शूर्पणखा। शूर्पणखा की क्या इच्छा थी? शूर्पणखा की सिर्फ इच्छा थी भगवान के साथ, फिजिकल रिलेशनशिप करना। उनको राम भगवान बहुत सुंदर लगे, उन्होंने बोला यार, ये मेरे को इनसे शादी करनी है, ये सुंदर है बहुत, एकदम, ओनली, नो अदर रीजन। कौन है राम, हु केयर्स, क्या है उनका मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान, कोई फर्क नहीं पड़ता शूर्पणखा को, उसको क्या चाहिए था, शी जस्ट वांटेड द बॉडी, ठीक है। भगवान ने बोला देखो मैं तो दे देता, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैंने एक पत्नी व्रत रखा है, तो आई कांट, है ना। तो ऐसा मतलब फिर वो जो भी हुआ, फिर नाक कट गई और फिर वो चली गई, एंड उसने फिर अपने भाई को भड़काया, ये वो जो भी हुआ। आपको पता है हम लोग शूर्पणखा की इतनी बुराई करते हैं, ठीक है, शूर्पणखा की कितनी बुराई करते हैं, उस शूर्पणखा की क्या गलती है आप बताओ यार। उसने फिजिकल रिलेशनशिप की वो करी, कोशिश करी, लेकिन किसके साथ करी? भगवान श्री कृष्ण के साथ, और भगवान सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड के साथ, सुप्रीम पर्सनालिटी के साथ शी वांटेड टू हैव रिलेशनशिप। क्या प्रॉब्लम है उसमें? इट्स इट्स सबसे प्योर बात है यार, इससे बड़ी प्योर की प्योरिटी की बात ही नहीं, इन द सेंस है प्योरिटी, लेकिन ये तो बहुत हाई लेवल की बात है। अब क्या हुआ, जब शूर्पणखा मरी, उसने उससे पहले खूब काफी सारी तपस्या तपस्या करी, और उसने क्या मांगा ब्रह्मा जी से कि मेरे को इनका संग चाहिए, लेकिन ये नहीं मांगा कि मैं उनको डिवोशन करूं, मैं उनकी भक्ति करूं, नहीं, मेरे को उनका संग चाहिए। नेक्स्ट जन्म में कुब्जा बनी। कुब्जा को क्या मौका मिला? कृष्ण भगवान के शरीर पे लेप लगाने का, भगवान गेव इट। देखो कुब्जा शूर्पणखा के रूप में उसको क्या दिया, अपने का वो दिया कि मैं भगवान श्री राम के पास आ पाई थोड़ा सा,
नेक्स्ट जन्म में, क्योंकि वो उसने इतना सारा वो करा था, उसके दिमाग से भगवान की छवि नहीं जा रही थी, लेकिन किस किस रूप में चाहिए था उसको, फिजिकल रिलेशनशिप। तो अगले जन्म में उन्होंने उसको वो बना दिया। ठीक है। अब भगवान शूर्पणखा जैसी इंटेंशन वाले का हम वो कुछ नहीं करते हैं। ठीक है। मतलब उनके लिए भी इतना उनके मन में प्रेम है कि यार चलो ठीक है यार, इसकी मैं क्या करूंगा, मैं इसकी जो वो है जो इसकी डिजायर उसको प्योरीफाई कर दूं, है ना। तो उसने प्योरीफाई कर दिया। अब शूर्पणखा को भगवान किस किस तरीके चाहिए थी, कंप्लीटली डिफरेंट। हमारे साथ क्या है, भगवान एकदम भावग्राही है। भगवान को ये नहीं दिखा कि शूर्पणखा है, भगवान को देखा इसका भाव क्या है। चलो वो तो छोड़ो यार, भगवान तो वो जैसे लास्ट क्लास में बता रहा था, यू नो, वो आई थी, क्या बोलते हैं, बकी, है ना, बकासुर की बहन, है ना। वो आई और पूतना उसने अपने दूध पिलाया, तो वो ये भूल गए कि उन्होंने जहर पिलाया। ये याद रहा कि इसने मुझे स्तनपान करवाया है। कौन कराता है स्तनपान, माता कराती है। माता कराती है स्तनपान, तो फिर माँ माँ का दर्जा दिया है उनको। तो भगवान के साथ क्या है, भगवान इस भावग्रही। ठीक है। तो शिला प्रभुपाद उसमें बताते हैं कॉन्टेक्स्ट में कि आप अच्छी चैंटिंग कर रहे हो, ये भगवान को पसंद आता है, लेकिन उससे भी ज्यादा क्या पसंद आता है कि आप उस अच्छी चैंटिंग करने के लिए कितना प्रयास कर रहे हो, है ना, कितना प्रयास कर रहे हो। शूर्पणखा ने छोड़ा नहीं। शूर्पणखा ने ऐसा नहीं हुआ कि हाँ ठीक है, रावण रावण मर गया, अब ठीक है यार, अब तो मैं कुछ कर नहीं सकती, भूल जाती हूँ राम को, नहीं। शी केप्ट ऑन गोइंग। तो जो भाव था कि भगवान को मुझे पाना ही है, वो जो एंडेवर उसने करा, वो किस लिए करा, क्योंकि उसके भाव ऐसा था कि मुझे कुछ भी करके भगवान के पास जाना है। तो हमारी अटेंटिव चैंटिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, हमारा जो एफर्ट एवरी सिंगल डे, हाउ मच एफर्ट आर वी मेकिंग टू चैंट अटेंटिवली। कई बार होता है ना कि यार 4 दिन से ट्राई कर रहा हूँ यार, आज तो बस ऐसे ही कर लेता हूँ, कोई फर्क। ये जो भाव आ गया, इसमें क्या हो गया, इसमें हम लोगों के पास, इसका मतलब क्या है, हमारी प्रायोरिटी नहीं है भगवत धाम जाना। अगर हम अटेंटिव चैंटिंग नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब हमारी प्रायोरिटी नहीं है। तो हमें क्या करना है, अटेंटिव चैंटिंग का जो प्रयास है वो इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है, इतना स्ट्रॉन्ग करना है, एवरी सिंगल डे। नो, आज गिरा हूं, वापस चढ़ूंगा, वापस आई एम फॉलिंग डाउन एवरी सिंगल डे, बट आई विल गेट अप एवरी सिंगल डे, आई एम गोना कीप मूविंग, आई एम गोना कीप मूविंग, आई एम गोना कीप मूविंग। आई विल शो कृष्णा, आई विल शो शिला प्रभुपाद, आई विल शो माय गुरु महाराज दैट आई एम सीरियस। दैट्स द ओनली थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट। आई एम सीरियस। और अगर हम लोग ये दिखा पाए, then what will happen is this is what Bhagwan wants, and this is how we get the mercy of Krishna. Ruchita Mataji. प्रभु, I have a question. Can you exactly define what is attentive chanting? मतलब Okay. उस वक्त हाँ आपका okay. फोकस कहाँ होना चाहिए, मैं क्या बताता हूँ, थॉट्स हाँ। होने चाहिए, नहीं थॉट्स होने चाहिए, खाली नाम सुनना चाहिए, मतलब क्या एग्जैक्टली exactly? Okay. So attentive chanting का मतलब ये है कि while you're chanting, you're hearing the holy name, सिर्फ बोल रहे हो और कान में जा रहा है, that is attentive chanting. That means अगर आप बोल रहे हो, कान में जा रहा है, ठीक है, और आप, अगर आप सिर्फ यही काम करे जा रहे हो, क्योंकि दिस इज द हार्डेस्ट थिंग टू डू। एंड रुचिता माता जी, आपने भी सुदर्शन क्रिया करी हुई है, आई डोंट नो वेदर आपने सहज करी है कि नहीं, सहज करी है आपने, किया मैंने सहज। है ना। अब सहज क्या है, सहज इज वेरी सिंपल। सहज इज 100 million टाइम्स इजियर देन चैंटिंग द होली नेम। हम्म। क्योंकि होली नेम में क्या करता है कि होली नेम में क्या होता है कि चैंट जैसे 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 आपकी चैंटिंग शुरू होती है, हर एक राउंड में आपको अपना दिमाग उसमें लाना होता है ना। हम्म। अब हर एक मंत्र में, अब यही एक प्रयास करना है हमें, हर एक मंत्र को सुनना है, हर एक मंत्र को सुनना है। ऐसा नहीं कि पूरे माला में एक मंत्र सुनना है, ऐसा नहीं है, हर एक मंत्र को सुनना है, और हर एक मंत्र का एक एक सिलेबल सुनना है। अब वो बहुत मुश्किल है हम लोगों के लिए, तो प्रभु, हमें, लेकिन वो फिर 16 राउंड्स करने में 4 घंटे लग जाएंगे। नहीं 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 नहीं, नहीं मैं, 2 घंटे? नहीं वो मैं कह रहा हूँ कि हम लोगों को वैसा नहीं करना है कि हम लोग नहीं हरे नहीं, मेरा कहने कृष्णा, को मतलब नहीं है। मतलब अगर मतलब अटेंटिव तो चैंटिंग कैसे करनी है कैसे तो हाँ। देखो, आप करना क्या है, ऑल यू हैव टू हाँ। डू इज मेक श्योर कि आपका कान में वो आपकी जो साउंड वाइब्रेशन मुंह से निकल रही है, आपके कान में जा हम्म। रही है। और अगर हम सिर्फ ये कर लें, जल्दी जल्दी करो, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। अब मैं क्या करता हूँ, आई कांट कॉन्सेंट्रेट ऑन ऑल 16 वर्ड्स। तो मैं क्या करता हूँ, मेरा बहुत अच्छा सिंपल तरीका है। सबसे पहली बार मैं पढ़ता हूँ तो बोलता हूँ हरे कृष्णा हरे हरे, जोर से बोलता हूँ हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जब मैं दूसरी बार मंत्र बोलता हूँ तो हरे के बाद जो कृष्ण आ रहा है उसको जोर से बोलता हूँ,
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और थर्ड में हरे कृष्ण, थर्ड थर्ड जो सिलेबल है उसको जोर से बोलता हूँ। इससे क्या होगा कि आपने अपने मन को लगाया उसमें, है ना। हम्म। आपने प्रभु, अपने, can we practice this with you one day? हाँ वी कैन We can डेफिनेटली। do this. हम इतनी चैंटिंग को लेकर बात करते हैं, बट हम चैंटिंग कभी साथ बैठ के ऐसे होता है ना हाँ, कि माता जी ने भी प्रॉपरली कुछ कैसे लिखा है करना इसमें, चाहिए। चैंटिंग वर्कशॉप, हाँ ठीक है, इट्स ए गुड आइडिया। आई थिंक रिचा माता जी, दिस इज एन एब्सोल्युटली गुड, ब्रिलियंट आइडिया। तो हम लोग एक काम करते हैं, हाँ एक चैंटिंग की क्लास करते हैं, पूरी क्लास सिर्फ चैंटिंग पे ऊपर, सारी की सारी। और मैं हम्म। जितने भी मेरे पुराने नोट्स हैं उसको निकाल के, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, और हम लोग सब लोग उसको कर लेंगे। बहुत ही अच्छा, इट्स ब्रिलियंट आइडिया। तो मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ पहले पहले पहली बार मंत्र करता हूँ तो हरे पे ध्यान देता हूँ, दूसरी बार मंत्र करता हूँ तो सेकंड लेवल पे ध्यान देता हूँ, तीसरी बार मंत्र करता हूँ तो चौथे लेवल पे ध्यान देता हूँ, क्योंकि हमारी अभी उतनी है ही नहीं, क्वालिटी नहीं है। तो मैं तो भूल जाऊंगी मैंने चौथे पे किया या पांचवे पे किया, मैं ध्यान बाबा इसी में चला जाएगा फिर। हाँ तो इसी इसी में ध्यान, इसी में जाएगा आपका। इससे क्या होगा कि कम से कम जो 60,000 60,000 चीजें हम दिमाग में सोचते हैं ना, वो नहीं हाँ, आएगा। वो नहीं आएगा। तो इससे क्या होगा एटलीस्ट, क्योंकि मैं आपको बताता हूँ हमारी एनर्जी जो होती है ना, मेनली हम्म। एनर्जी कहाँ जाती है, वी थिंक एटलीस्ट 60 to 80,000 थॉट्स इन अ डे, ठीक है। अगर हमारे पास 100% एनर्जी है, उस 80,000 में से 95%, मतलब अराउंड 77% 77,000 जो थॉट्स हैं वो रिपीटेड थॉट्स होते हैं हमारे दिमाग में। अगर हम उनको खत्म कर दें तो वी विल हैव 200 टाइम्स मोर एनर्जी सेम डे, है ना। इसीलिए मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये जो सहज करते हैं हम लोग, ये सारी चीजें करते हैं ना, जो ब्रीदिंग मेडिटेशन होती है, शवासन होता है, ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, क्योंकि उस समय हम लोग थोड़े हमने थॉट्स को निकाल रहे हैं, एनर्जी और आ रही है। लेकिन जब हम लोग ये करेंगे, पहले आपको ध्यान देना पड़ेगा, तभी तो जब आप ध्यान दोगे, मैंने चौथा करा है, नेक्स्ट टाइम मुझे पांचवा करना है, ये जब आप ध्यान दोगे, इस तब आपके पास, क्योंकि आपने मन को एंगेज कर दिया इसमें, अब इस मन के पास वो 60,000 में से जो थॉट आने वाले थे वो नहीं आ रहे। बिल पे करा नहीं करा नहीं, क्योंकि हमें पता है जैसे ही बिल दिमाग में आया, मैं भूल जाऊंगा मैं कहाँ पर था, है ना। तो इससे क्या होता है कि फिर इट विल गिव यू, अब क्या होता है जब, कई बार ऐसा होता है, मेरे लिए ये भी बहुत बड़ा सिंपल हो जाता है। तो व्हाट आई डू इज, आई डू फन, 3, 5, 7, ऐसे ऐसे करता हूँ फिर मैं, क्योंकि क्या होता और है, आई डोंट अंडरस्टैंड प्रभु जी, क्या बोले आप, मतलब क्या करते? पहली पहली बार में तो क्या करता हूँ, ऑल्टरनेट करता हूँ, कि पहले हाँ। पहले पहले मंत्र में नंबर 1 पे ध्यान दिया, दूसरे मंत्र में दूसरे पे, तीसरे मंत्र पे तीसरे पे, है यू ना। प्ले गेम्स व्हाइल चैंटिंग। दैट्स करेक्ट, क्योंकि क्या होता है उससे, व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज, आई एम ट्राइंग टू कीप द माइंड ओनली ऑन चैंट, हियरिंग द साउंड, नॉट हम्म। ऑन एनीथिंग एल्स, नॉट ऑन राइट। मेरा बिल्स, मेरे को आज ऑफिस में क्या करना है, हाँ, बीवी ने क्या बोल दिया, बच्चे ने क्या बोल दिया, दैट्स एक्चुअली अ ब्रिलियंट आइडिया प्रभु जी। और ये प्रभु मैंने ये सुन, अच्छी हम्म। स्ट्रेटेजी है। हाँ प्रभु, मुझे भी हाँ अच्छी लगी। एटलीस्ट हाँ हमारा दिमाग वही घूमेगा ना। दिस इज एक्चुअली हाँ। माइंड गेम्स। हाँ। हाँ, इट इज ए माइंड गेम, एंड दैट्स, हम मैंने हम्म। उसमें ही सुना है, अपनी चैंटिंग वर्कशॉप्स में ही मैंने सीखा है ना। इट इज ए ब्रिलियंट आइडिया, और इसको अपन और कॉम्प्लिकेटेड बना सकते हैं कि अगर प्रभु, हमारा पर सांसारिक जिंदगी जो अपना हमारी है, मतलब मुझे ऐसा लगता है अगर हम ज्यादा इसमें रहेगा तो हम सब भूल ही जाएंगे, मतलब बिल पे करना भूल गए, ये भी भूल गए, नहीं सारा नहीं दिन नहीं चैंटिंग ही करते रह नहीं नहीं जाएंगे। नहीं नहीं, सिर्फ 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 वो जो समय है ना, 1 hour 45 minutes या 2 घंटा है ना, उस 2 घंटे यार, हम बस ये सोचो कि यार मेरे को ये 2 घंटा भगवान को देना है ना, ये प्रभु, दिस, हाँ एक दो पॉइंट जो महेंद्र प्रभु बहुत पहले आए थे ना, एक बार उन्होंने अपनी हाँ रिट्रीट की थी, ध्यान है? हाँ, उन्होंने ही प्रभु बताया था उन्होंने, ये वाला उन्होंने ही हाँ बताया था, हाँ हाँ प्रभु, इसके साथ साथ उन्होंने एक एक पॉइंट ये भी बोला था कि आप इस तरह से करो कि आपके गुरु महाराज आपके सामने बैठे हैं। हाँ। और गुरु एक, महाराज को सुना रहे हो आप, गुरु हाँ महाराज ने गुरु आपको, महाराज। प्लीज यार मेरे को थोड़ा सा ना एक राउंड करके बताओ, मेरे को दैट्स like, ट्रू। मैं थक गया हूँ बहुत, मैं थक गया हूँ, जस्ट से हम्म। गिव मी लाइक 108 टाइम्स हरे कृष्णा महामंत्र, कैन यू रिपीट इन राइट, माय ईयर, हाँ, कि तो आपके व्हाट विल, गुरु महाराज आपके सामने बैठे हैं और हाँ आप उनको सुना रहे हो ये, मतलब। हाँ और एक और चीज प्रभु उन्होंने बोली थी कि प्रभु, मैंने वो रिट्रीट नहीं अटेंड की थी, पर मुझे किसी हाँ डिवोटी ने ही बताया था कि हाँ हाँ एक और पॉइंट उन्होंने बताया था कि लाइक आपने कोई भी सर्विस की है, यू थिंक अबाउट दैट सर्विस हाँ एंड एंड हाँ, यू वो भी, डू योर चैंटिंग। एक ये हाँ। भी और उन्होंने एक और बताया चीज था। उन्होंने बताई थी कि जैसे मैं, मेरे को चैतन्य, कई लोगों को नित्यानंद प्रभु से बड़ा लगाव होता है, कई लोगों को चैतन्य महाप्रभु से लगाव होता है, जो जो भी आपका लगाव है, जैसे मैं क्या करता हूँ कि जब मैं हरे बोलता हूँ तो मुझे चैतन्य महाप्रभु याद आते हैं, कृष्ण बोलता हूँ तो भी मुझे चैतन्य महाप्रभु, तो मैं
चैतन्य 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 मन, मेरे मेरे दिमाग में सिर्फ चैतन्य महाप्रभु की फोटो है और मंत्र चल रहा है, हर एक मंत्र में चैतन्य महाप्रभु की फोटो से चमक रही है ना। दिस इज व्हाट आई ट्राई, समटाइम्स इट वर्क्स फॉर मी, समटाइम्स समटाइम्स इट डजंट। और कई बार क्या होता है, कई बार क्या करते हैं, चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों को, जैसे हरे हरे बोला तो चैतन्य महाप्रभु, कृष्ण बोला तो चैतन्य महाप्रभु, जब राम बोला तो अपने नित्यानंद प्रभु, क्योंकि राम वो वाले अपने राम नहीं, बलराम वाले राम है। तो बलराम वाले राम कौन है? नित्यानंद प्रभु। तो नित्यानंद आप प्रभु। कैसे कैसे पढ़ो, हरे कृष्ण, इसमें चारों बार चैतन्य महाप्रभु दिमाग में आ रहे हैं। फिर कृष्ण कृष्ण हरे हरे, इसमें चैतन्य महाप्रभु, उसके बाद हरे राम, उसमें चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद, हरे राम चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु, राम राम नित्यानंद प्रभु नित्यानंद प्रभु, हरे हरे वापस चैतन्य महाप्रभु। इसमें क्या होता है, यू आर मैनेजिंग योर माइंड थ्रू द डीटीज। आप डीटीज में अपना दिमाग घुमा दिया आपने ना, यू प्लेइंग गेम्स विद योर माइंड थ्रू डीटीज। काफी सारी टेक्निक्स हैं, वी विल टॉक अबाउट लॉट ऑफ टेक्निक्स, हर किसी के प्रभु वो लिए। उन्होंने सर्विस का भी उन्होंने डीटी से ही किया था। सर्विस का अच्छा भी उन्होंने डीटी पे ही ले आए थे वो। अच्छा अच्छा। हाँ। और देखो कब? उन्होंने एक और आइडिया ये भी दिया था कि हम लोग अगर जैसे एक एक बीट को जैसे ऐसे एज्यूम करें कि हम लॉर्ड कृष्णा के फीट को प्रेस कर रहे हैं, उनकी हाँ मसाज कर उनके, रहे हैं। हाँ उनकी अंगूठों की, उनके जो पंजे हैं पैर, हाँ राइट। हम हाँ उनके उनको मसाज चरण वो चरण पैरों को को दबा रहे हैं हम उनके, दबा रहे राइट हैं, हाँ हाँ। हाँ। राइट, ये भी था एक ये पॉइंट। भी हाँ। तो हम लोग करेंगे, बड़ा अच्छा, दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ डूइंग इट। हम लोगों का, मेरा भी रिवीजन हो जाएगा, बट इट्स अ रियली गुड, वी शुड डू अ recap on chanting. No, Prabhu, I'm saying we should do a live workshop just on हाँ, chanting. लाइव वर्कशॉप नहीं, ओनली ऑन चैंटिंग। 16 राउंड साथ में बैठ के सब करेंगे, तब जाके तो यू आर अटेंटिव नहीं। तो ऐसा मतलब तो नहीं दैट कर। मीन्स यू आर सेइंग दैट वी शुड डू इट फेस टू फेस, है ना? हाँ, कभी ऐसा गुड कर आइडिया। सकते हैं, वंस इन अ मंथ, लाइक वी जस्ट चैंटिंग 16 राउंड्स अर्ली इन द मॉर्निंग, या जैसे भी हो सके, ठीक है, लेट्स डू इट। लेट्स है ना। लेट्स लेट मी प्लान इट। प्रैक्टिकल वर्क्स मोर देन थ्योरी। ठीक है ठीक है ठीक है, गुड आइडिया, let me think about it। ठीक है। ओके, सो लेट मी recap it again, है ना? um he talking about the method to go back to Godhead. How can we go back to Godhead? There are 5 ways. One is remembering the Lord at the time of death. दूसरा है समाधि। तीसरा है become a pure devotee, which is hard। चौथा है क्या बोलते हैं, टेस्ट इन चैंटिंग इंक्रीज करो। टेस्ट इन चैंटिंग कैसे इंक्रीज हो सकता है? मेनली बाय लिसनिंग, बाय हियरिंग द lectures, listening, reading Srimad Bhagavatam, you will get the taste in chanting, and obviously सेवा। और फिर फिर पांचवा क्या है जिसके कारण बाकी चारों हो सकते हैं, इज मर्सी कोटा। और मर्सी कोटा का हमें इस्तेमाल करना है। और मर्सी कोटा हम लोगों को समझ में आना चाहिए कि हम लोग मर्सी कोटा में हैं, वी आर वेरी प्रिविलेज्ड। हम लोग इस मूवमेंट में आ गए हैं, हम लोग इस परंपरा में आ गए हैं, और हम लोग को हम वी आर लाइट ईयर्स अहेड ऑफ पीपल राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ भक्ति एंड स्टफ, क्योंकि हम लोगों को शॉर्टकट मिल गया है। I don't know whether you know the warp speed. Warp speed is like speed of light होती है ना, 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड, है ना? और warp speed क्या होती है? आप एक एक ही मोमेंट में एक realm से दूसरे realm में पहुंच जाओगे। एक पोर्टल होता है, पोर्टल से आप बिलियंस ऑफ ट्रिलियंस ऑफ माइल्स को एक ही सेकंड, आधे सेकंड में क्रॉस कर दोगे। स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा वॉप स्पीड में चले जाते हैं हम लोग। कैसे? मर्सी कोटा में है, क्योंकि हम लोग, है ना, वो व्हाट स्पीड? वॉप? वॉप, डब्ल्यू, WARP? हाँ, वो? हाँ वॉर्प, हाँ। हाँ वॉप स्पीड। ओके ओके। हाँ, so are you talking about dimensions, अलग अलग जो dimensions है? हाँ, warp speed में you can actually fold the space और time को, you can fold it, so जैसे हाँ। एक ये पेपर है, एक डॉट यहाँ पर लगा है, एक डॉट यहाँ पर लगा है, इन डॉट को साइमल्टेनियसली एक साथ लाना है तो पेपर को फोल्ड कर देते हैं ना। इसी तरीके से ये टाइम की शीट है, टाइम को ऐसे फोल्ड कर दिया, अगर हम लोगों ने हम्म। फोल्ड कर दिया तो वो जो बीच में जो गैप बनता है उसको वॉर्प कहते हैं, एक डायमेंशन से दूसरी डायमेंशन I've जाने के seen a movie about it also, मुझे नाम नहीं याद आ रहा लिए। अभी। इंटरस्टेलर। हाँ, इंटरस्टेलर, राइट। तो एक्चुअल में ऐसा होता है ना, मतलब पॉसिबल है? इट इज जस्ट ए थ्योरी, इट इज जस्ट ए थ्योरी, क्योंकि इसको प्रूव नहीं करा जा सकता, अभी तक प्रूव नहीं, लेकिन इसकी जो थियोरेटिकल वो है, जो डायमेंशन है, इट इज पॉसिबल, इट इज पॉसिबल। हम्म। अभी तो हम लोगों को ये भी नहीं पता है कि इफ वी कैन गो फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट क्या होता है, हमें पता ही नहीं है, क्योंकि देर इज हम्म। नथिंग वी नो दैट गोज फास्टर देन स्पीड ऑफ लाइट, है ना? अभी हम्म। पता ही नहीं है, वी डोंट नो। देर ऐसा आर कुछ अपने 100%, शास्त्रों में नहीं है? अपने शास्त्रों में है, हमारे शास्त्रों में है।
एक बार इनकी बात हो रही थी नारद मुनि की। नारद मुनि कैन अपीयर एंड डिसअपियर इन डिफरेंट डायमेंशन। डायमेंशन मतलब स्पिरिचुअल डायमेंशन और मटेरियल डायमेंशन में ही कैन स्विच। And what is this? This is teleporting from one place to another place. He can teleport himself from one universe to another universe. है ना? इस multi, But he's universe Narad hopping. Muni. Huh? He's Narad Muni. Yeah. So no, the thing is, because he is Narad Muni, but Narad Muni can do it, and Narad Muni can give this to anyone. So we Oh, don't know how many people have it. We Many people would have it. do It's you not. have it? No. We don't. And इसकी इतनी तो नहीं, लेकिन कई लोग होते हैं, they can travel astral, they can actually travel from Astral one, travel. No, I've heard and about not astral astral travel, travel. not astral travel, actual travel No, with the astral body. travel. They can actually With the यहाँ पर, body. हाँ, there are people even right now, they actually dip in Gangotri in Himalayas, and they come out in UP, और वहां पर जो हम वो होता है ना, क्या बोलते हैं, Really? हाँ I हाँ, haven't देखिए, राइट heard प्रभु, of this. ऐसे ऐसे तो बहुत लोग हैं प्रभु जो कि वहां बहुत पर हैं। वो योगा वगैरह करते हैं, या हाँ दे हाँ कैन डू, हाँ, या दे कैन डू इट। राइट। आपको पता है, देर आर, एक सिंपल चीज बताता हूँ, दे हैव डन दिस वेयर, पता नहीं कितने करोड़ लोग आते हैं इसमें, अपने जो होता है ना कुंभ का मेला, कुंभ के मेले में जितनी एंट्रेंस से लोगों को अंदर आने दिया जाता है, उससे ज्यादा लोग अंदर कैसे होते हैं? बिकॉज Hmm. लॉट ऑफ पीपल दे आर कमिंग थ्रू अनदर मीन्स, दे आर अपीयरिंग Yeah. इन दैट प्लेस, दे आर नॉट ट्रेवलिंग टू दैट प्लेस, But दे आर that's not अपीयरिंग। our goal, right? दैट्स नॉट आवर गोल, दैट सिद्धि मिलती है, लेकिन वो, और कई जो लोग, Hmm. जिन लोगों के पास ये सिद्धि होती है ना, अगर वो किसी को दिखाए नहीं, अगर वो बहुत सारे लोग नहीं दिखाते हैं, देन Hmm. दे कैन एक्चुअली यूज दैट टू एलिवेट टू एटलीस्ट ब्रह्म ब्रह्म क्या बोलते हैं, परमात्मा प्लेटफॉर्म, एंड देन Hmm. वहां से एलिवेट होकर ऊपर तो जा सकते हैं वो। लेकिन क्या है कि लोग, जो लोग They're दिखाते stuck. हैं वो Hmm. चली जाती है सिद्धि, और जो लोग नहीं Hmm. दिखाते हैं वो सिद्धि को यूज करते हैं, तो अगर मटेरियल चीजों के लिए यूज करते हैं तो भी कोई वहीं तक रह जाते हैं। जो लास्ट स्नेयर ऑफ माया इज कि वो सिद्धि मिल जाती है, उस सिद्धि से मोस्टली पीपल वहीं रुक जाते हैं। Hmm. कई लोग होते हैं उनको चाहिए ही नहीं होती सिद्धि, है ना? Hmm. तो वो थोड़ा सा आगे निकलते हैं, वरना नहीं। बट देर आर लॉट ऑफ पीपल, जो हमारा जो ये जो ना स्ट्रिंग थ्योरी और ये जो सारी चीजें अभी बताते हैं साइंस की, अभी देयर इज ए यूनिवर्सल प्रिंसिपल थ्योरी, आई कांट रिमेम्बर, यूनिफाइड थ्योरी जिसको बोलते हैं, उसमें Can बताते you हैं। share? Can you share these things like just for reading? I want to हाँ see. हाँ, ठीक है, Hmm. I'll Hmm. share it। उसमें भी है, हमारे में बताते हैं, जो हम गर्भोदक्षाय विष्णु जिसको बोलते हैं, दैट इज कंसिडर्ड टू बी द यूनिवर्सल प्रिंसिपल, जो सारे के सारे जो फोर्सेस है ना, उनको उनको एक साथ बनाता है, वो गर्भोदक्षाय विष्णु है। हमारे शास्त्रों में उसके बारे में लिखा है, यूनिफाइड फील्ड जिसको कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, ये फोर्स सबका ओरिजिन एक ही है, गर्भोदक्षाय विष्णु। एनीवे, विल शेयर इट। Hmm. ऑलराइट, दैट्स इट। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, हरे कृष्णा। Hare प्रभु मैं Krishna. 5 मिनट लूंगी सिर्फ हाँ, आपके। प्लीज 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 बोलिए ना। प्रभु थोड़ा भक्ति शास्त्र के लिए थोड़ा एडवाइस दीजिए ना, कैसे आप पढ़ते, हम्म, कैसे आपने किया, और हाँ ठीक है, गुड अप्रोच गुड। क्या है बेस्ट करने की। माता जी, मैं हम्म। आपको मैं बताता हूँ, दिस अगर आप, इफ यू कैन डू दिस ना, आपको कभी कोई आपको ज्यादा एग्जाम के समय पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं क्या करता था कि मेरे को पता है कि आज भक्ति शास्त्री में क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, मैं पहले से सारे परपट पढ़ लेता था, और जब भक्ति शास्त्री जो क्लास में जो पढ़ाते थे उसके नोट्स बनाता था, और उसी दिन जैसे भक्ति शास्त्री की क्लास खत्म हुई, उसी दिन वापस वो नोट्स घर आके तुरंत पढ़ता था। नॉट नेक्स्ट डे, नॉट द डे आफ्टर, तुरंत। तो एक ही 2 दिन के अंदर 3 बार आप पढ़ रहे हो, उससे क्या होता है मत कि 90% सॉरी, आपको याद रहेगा। सॉरी प्रभु, मैं जो आपको कैच कर पाई हूँ कि आप जाने से पहले परपोट पढ़ के जाते थे, उनके नोट्स बना के भी जाते थे हाँ, जाने नोट्स से नहीं पहले। बनाता था, ज्यादा नोट्स नहीं बनाता, सिर्फ परपोर्ट पढ़ लेता था, हाईलाइट कर लेता था जो मुझे अच्छी लगी चीजें, और जो मुझे अच्छा। क्वेश्चनेबल लगी, कोई क्वेश्चन आया तो उसमें क्वेश्चन मार्क लगा दिए, बस ऐसे। ठीक है, ये अच्छा। मतलब पढ़ लिया मैंने। फिर हम्म। क्लास में गया, पढ़ा वहां पर, समझा जो भी समझना था समझा, और वापस आके वापस जो मैंने नोट्स क्लास में बनाए ना, वो सिर्फ वो नोट्स आके पढ़ता था तुरंत ही। अच्छा। क्यों? अच्छा, क्योंकि मतलब आप उसको, हाँ समझ हाँ, गई मैं। वापस आके इट ओनली टेक्स 5 मिनट्स, माता जी, 5 मिनट्स भी नहीं, कई बार 3-4 मिनट्स ही लगते हैं, वो पढ़ लिया, हाँ। तो आपका एक ही दिन में 3 बार रिवीजन हो गया, और उससे
काफी सारी चीजें दिमाग में रह जाती हैं। एक्चुअली कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर होते हैं, हम पढ़ के जाते हैं ना तो वहां पर क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, फिर समझ में भी आता है काफी सारा। एक तो ये तरीका है, और दूसरा क्या है, आपके जो की मेमोरी वर्सेस आपको दे दिए गए होंगे तो उसको आप हाँ। करके और प्रिंट करो, उसको लेमिनेट करो, और उसको सुबह उठते ही सबसे पहले उसको सारे के सारे वर्सेस पढ़ो, उसका ट्रांसलेशन पढ़ो, वर्स पढ़ो, ट्रांसलेशन, वर्स ट्रांसलेशन, वर्स ट्रांसलेशन, ऐसे पढ़ो। याद नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है, जोर जोर से पढ़ना ओके। है, में नहीं पढ़ना है, जोर से पढ़ना है बस। अच्छा। मेरे को जो भी मंत्र याद है, मेरे को शिव भक्ति शास्त्री के कारण याद है। मेरे को सारे श्लोक हम्म। वहीं से याद है, क्योंकि मेरे को, मैं हम्म। उसके अलावा मैं कुछ नहीं करता था, मैं डेली पढ़, अभी भी मेरे पास माता जी एक बुक पड़ी है, देखो ये, मैं ना ऑफिस में भी लेके आता हूँ मेरी बुक। ये है एक, गीता रत्नमाला, है ना। अच्छा। इसमें ना मैंने ये लगा रखे हैं, है ना, ये जो वर्सेस है ना, ये मेरे को लगता है कि आई कैन यूज इट इन प्रीचिंग एज वेल, है ना। तो ये हम्म। वाले वर्सेस को मैं रोज सिर्फ यही वाले वर्सेस को खोल के पढ़ लेता हूँ, है ना, और फिर पढ़ के और इसका ट्रांसलेशन पढ़ के और बस रख देता हूँ, लेकिन जोर से पढ़ता हूँ, है ना। ये बहुत मेरे काम, ये दो चीजें बहुत काम आई मेरे। तो प्रभु आपने ना, जैसे वो बोला जाता है भुर्जन प्रभु की बुक और गीता सुबोधिनी, आपने उनका भी रेफरेंस लिया था या सिर्फ भगवत गीता जो आपने है बुर्जन उससे प्रभु ही? की बुक मैंने, मेरे पास है बुर्जन प्रभु की बुक, आपको चाहिए तो मैं दे दूंगा, लेकिन नहीं, मैंने भी परचेज तो कर ली प्रभु, हाँ। मैंने उसको यूज ही नहीं करा माता जी, क्योंकि मेरे को इतना रेफरेंसेस पढ़ने का टाइम ही नहीं मिला। राइट प्रभु, वही होता है, मैंने इतना तो सिर्फ पढ़ने का गौरांग टाइम। प्रभु के नोट्स नोट्स पढ़े, गौरांग प्रभु के नोट्स, गीता सुबोधिनी, गौरांग प्रभु के नोट्स, और ओके, अपना, नोट्स, हाँ वो बहुत हाँ अच्छे हैं, राइट, हाँ। एंड बस, और कुछ गीता नहीं पढ़ा। सुबोधिनी और ये अपना भगवत गीता। हाँ बस बस हाँ, बस। इन दोनों से तो आपको नोट्स से मिल जाते हैं बेसिकली। हाँ बस बस हम्म। बस। और हम्म। किसी चीज की जरूरत नहीं है, है ना। और एक और चीज बहुत हेल्प करेगी अगर हो सके तो, अगर आप ऋचा माता जी, आई डोंट नो हु एल्स इज डूइंग, मेक एक स्टडी ग्रुप, है ना। हफ्ते में एक बार 1-1.5 घंटे के लिए, ऑनलाइन ही सही, लेकिन मेक ए स्टडी ग्रुप, साथ में बैठ के डिस्कस की, यार ये इसमें मेरे को ये समझ में आ रहा है, ये समझ में नहीं आया, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है। आपको मैं हम्म। बता रहा हूँ, जितना आपको क्लास में नहीं समझ में आएगा ना, उससे ज्यादा उस स्टडी ग्रुप में समझ में आएगा। क्योंकि स्टडी ग्रुप में रॉ आता है, जो जो पढ़ा रहे हैं वो टीचर्स, वो अपने टीचर्स वर्जन दे रहे हैं। जो आपके साथ बंदे काम कर रहे हैं, उनको क्या समझ में आ रहा है, किस एंगल से वो चीजों को देख रहे हैं, उससे सबसे ज्यादा समझ में आता है। ये जो हम लोग क्वेश्चन आंसर सेशन कर रहे हैं, इससे हम लोगों को सबसे ज्यादा समझ में आता है, पूरी क्लास से ज्यादा। तो प्रभु स्टडी ग्रुप तो हम लोगों का भी है, पर अभी तक हम लोग स्टडी ग्रुप में क्या कर रहे थे कि प्रभु हम लोग ना, जो रीडिंग होती है वो रीडिंग ही कर रहे हैं प्रभु। हम लोग 7-8 का माता जी का हमारा ग्रुप बना हुआ है। हाँ, तो हम लोग वीक में 2-3 बार कर लेते हैं रीडिंग, पर अभी हम उसमें रीडिंग ही कर रहे हैं, डिस्कशन जैसा मेजर अभी कुछ हुआ नहीं है उसके अंदर। तो आप क्या करो तो ना, उसी उसी में ना क्या करा करो कि कोई चीज है ना, अरे मेरे को माता जी ये समझ में नहीं आया, जैसे अभी आपने क्वेश्चन पूछा ना, माता जी व्हाट डज दिस मीन, आप हम लोग हम्म। थोड़ा सा बात कर सकते हैं इस बारे में, सब लोग अपनी अपनी राय देते हैं, ऐसे भी गॉट कर, योर पॉइंट, राइट। ऐसे भी राइट कर प्रभु, सकते हैं। राइट। हम्म। लेकिन सिर्फ पढ़ने पढ़ने, इट्स ए गुड थिंग, पढ़ना भी अच्छी बात है, लेकिन अगर डिस्कस करो तो ज्यादा अच्छा है। और राइट, बड़ा राइट ग्रुप बनाओगे ना माता जी, मुश्किल हो जाएगी, ग्रुप होना चाहिए 3 लोगों का, 4 लोगों का, 4 लोगों का ग्रुप अच्छा हो, उसमें प्रभु, क्या, एक्चुअली रहते शर्म तो नहीं तीन है। चार लोग ही हैं मोस्टली। हाँ, सब तो लोग उन चार रहते में भी नहीं है। शर्म नहीं आनी चाहिए एक दूसरे से, क्योंकि यार मैं कोई बेवकूफी वाला सवाल तो नहीं पूछ रही हूँ, ऐसा नहीं होना चाहिए। राइट, राइट, गॉट योर पॉइंट प्रभु, हाँ। ठीक है, और चलो। प्रभु कई बार किसी किसी वर्ड्स को इधर उधर से रेफरेंस लेके भी पढ़ा समझा जा सकता है, क्योंकि कई बार बिल्कुल क्लास के अंदर नहीं बिल्कुल समझ बिल्कुल। में आता है। और प्रभु मुझे अभी ऐसा लगा, एक प्रभु मुझे मिले, कार्तिकेय दास करके कोई प्रभु है प्रभु। मुझे मैं ऐसा नहीं लगा जानता। कि हाँ प्रभु कोई यूएस के हैं। तो अभी ना प्रभु हमें कुछ प्रेजेंटेशन तैयार करनी थी, तो मैंने उनके ही नोट से की थी। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे भक्ति शास्त्री क्लास की बजाय उनके वो जो पढ़ा रहे हैं ना एक एक श्लोक को, वो मेरे को ज्यादा अच्छा मेरे को समझ लिंक में आया। भेजो ना, हाँ प्रभु, मैं देती हूँ, बहुत मेरे को लिंक अच्छे से भेजना। बताया उन्होंने प्रभु, हाँ, बहुत अच्छे से नहीं बताया। नहीं, ऐसी चीजें शेयर कर दिया करो, क्योंकि हम लोगों को भी ना कई बार, क्योंकि क्या होता है हमारा प्रीचिंग, मेरा तो प्रीचिंग में यह है कि जहां से भी अच्छी तरीके से समझाने की मौका मिल रहा है, वी शुड लर्न फ्रॉम देम ना। वापस से राइट, राइट। रीइन्वेंट व्हील करने से कोई मतलब नहीं है ना। तो भेज देना और मुझे। अभी अभी उनको सुमित प्रभु को ना एक कोई पूरे हाँ, भगवत वो गीता तो के ना, उन्होंने शेयर करा, उन्होंने मुझे शेयर करा वो तो। बहुत अच्छा है प्रभु, वो वो तो अमेजिंग है। वो नोट्स तो मैंने, ऐसे नोट्स कभी देखे ही नहीं है, और है ना। पूरा उनको पूरी प्रभुपाद की बुक्स मिल गई है प्रभु। किनको? उनको प्रभुपाद की सारी बुक्स का, वो जो प्रभु जी हैं, जो यूएस के प्रभु जी हैं जिनका सुमित प्रभु ने आपको शेयर किया, उन्होंने सबके नोट्स बना रखे हैं वैसे ही। नहीं यार, वो तो मेरे को तो सिर्फ चैप्टर 1 से लेके 8 तक के ही है मेरे पास, तो जो उन्होंने उन्होंने भेजे हैं। उस दिन उन्होंने उस दिन मुझे बताए थे, बोले उन्होंने सारे शेयर कर दिए हैं प्रभु।
उन्होंने तो ठीक है यही ठीक है, मैं बताया मुझे। चेक करूंगा, मे बी हाँ राइट, बट और मैंने दैट मिस कर दिया हूँ मैंने। दोज वंस आर अमेजिंग प्रभु। हाँ वो वो तो तो बहुत बहुत ही अच्छा है, अच्छे। वो तो बहुत ही हाँ बढ़िया है। राइट, बट आई क्लैरिटी शेयर के, यू दैट प्रभु ठीक जी है, के जो प्लीज प्लीज। लेक्चर्स है वो भी। हाँ ठीक है माता जी। थैंक यू कौन प्रभु, कौन थैंक प्रभु यू जी फॉर का शेयरिंग। नेहा माता जी? I'll share you रुचिता, उनका वन बाय वन एक एक वर्ड्स को उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। 10-10 12-12 मिनट के एक एक श्लोक का उन्होंने बहुत डिटेल में अच्छे से बता रखा है प्रभु, वन बाय वन। चलो भेजना माता जी, है ना। श्योर श्योर प्रभु, थैंक यू, और थैंक यू, ग्रंथराज श्रीमद् थैंक यू सो मच। भागवतम की जय, शिला प्रभुपाद की जय, सामवेद भक्त वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्णा। कृष्ण।